ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். We'll keep them both in our prayers. May God bless them. For opening song, let's all rise up and sing song number 25. Arun Padagare, Arun Padal number 25. Sarvaloka Sarvaloka Namaskaram. Sarva Srishtigare Namaskaram. Speaker has chosen this morning is from the book of Psalms, chapter 100. Book of Psalms, chapter 100. Stotra Sahita, इसका 100 अध्याय. Book of Psalms, chapter 100. संगीतन पूरा अधिकार वचन लेना चाहिए. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. May God bless His word. I request the congregation to lay down below. Heavenly gracious Master, thank you, Father. Thank you for your graciousness. Thank you for your love. And thank you for your goodness, Master. Thank you for being an amazing God this beautiful Sabbath morning. To praise you, to worship you, that you have given an opportunity to come into your presence, Lord.
to attain your grace, to listen to your scripture and be in your presence throughout the day so that we could learn something and not to go empty from this place, but filled with thy grace and the Holy Spirit, Father. This beautiful morning, Father, Lord, we thank you for getting us all together into your presence. There are many out there who are not able to come today. Bless them too and guide them, lead them abundantly in your graciousness and show them that what you are and what you can do. Let them come and serve you in every sense, in every manner. Lord, you are the King of Kings, the Lord of Lords, the one who created, the one who needs faith to do everything. And I praise you for showing that faith on each one. Help us to have that faith in you. Matthew 21:22 says, if you believe and ask anything in prayer, we shall surely receive it. Psalms 21 verse 1 says that the Lord will not withdraw the request of any lips. Today we come into your presence with the request you should lead and we should lead and guide, Father. This beautiful morning, I pray for each and everyone who is seated here. Bless them, guide them, and protect them, Father. Many among us sick, many among us are not well, are not into your presence, Father, but you should lead and guide, Father, so that we could be focusing on you and lead, Father. If anyone among us is sick, you should heal them with abundance of grace and mercy, Father. Lord, especially in this moment, we especially pray for Mrs. Clara Tandaraj. Be with Amma and take care of her and give her cushion, take care of her. Lord, whatever thine will is there, let it be done, Father. Thank you for your mercy. You are the greatest surgeon she has right now. You are the greatest physician she has right now. Lord, you should heal her. As we are praying over here, you should touch her from top to bottom and heal her with abundance of grace. That when we come again next week, help us to have a testimony in our heart that our Lord did it for us, Father. Thank you, Master. Thank you for your goodness and leadings, Father. Lord, we also pray for the auntie who is admitted in the hospital. Take care of her, guide her, Father. Let all the fear be out of her and guide her, Father. Lord, we also pray for Mrs. Meemani Wagmani. Be with her, guide her and lead her, Father. Whatever leg pain, the leg swelling, whatever things are there, Father, let it be gone in the name of Jesus, Father. Lord, you are the doctor, you are going to heal and you are healing her. We praise you for that kind of grace, Master. We have kept everything in your presence. We have asked you and you have done it for us. And we thank you for that kind of grace and mercy, Father. Thank you for everything and thank you for leading, Father. Lord, the further moment we give into your presence, the speaker of the hour, we give into your presence. Lord, you should hide your son and you should speak to each one of us, Father. Help us not to be empty from this place, but help us speak with the songs and praises towards your name. Indeed, you guide and you bless. With your name alone be glorified. To answer prayer in the name of Lord and the Savior, Jesus Christ. Amen. This is a time for tithe and offerings. You can get your personal offerings, birthday offerings, and tithe forward. At that time, Miss Rebecca and her sister will sing a special song. प्रेज़ गॉड। हाथी सागर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम दोनों को यहाँ पर उनकी स्तुति के लिए यहाँ पर खड़ा किया है। आज का जो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत है, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य धन्य कहते हैं तुझे। परमेश्वर को उनकी स्तुति करना पसंद है, तो इसलिए आज हम इस गीत से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरी प्रशंसा गाती है, धन्य धन्य कहते तुझे। तेरी प्रशंसा गाते
I would like to thank both the sisters for a beautiful song and request the congregation to rise up. Lord, thank you for the opportunity we are present one more time to come at your presence and to thank you for the inheritance you have given to each one of us, Father. Thank you for your healings and thank you for your mercy. Lord, this moment we especially pray for all the offerings, by birthday offerings, special offerings, which have been submitted into your presence. We should bless their hands which are able to give it today. Bless them too who are not able to. When they come back next week, let them come with a double portion of blessings to praise you, to worship you, Father. Thank you for your love and thank you for your mercy, Lord. That this offering is like to use for your purpose, for your glory, for your ministry, Father. And you should lead with abundance of grace, Father. Thank you for blessing each one of us. To lead and guide and bless God's Spirit. In the name of God and the Savior, Jesus Christ. Amen.
Okay. This time we have a sermon by Pastor Ashok Kamble. Morning, you might see my name all over the list, but then we have a senior pastor among us, and it's Anjali, to give a long respect for the work he has done for the ministry of God. And today we have him from the Neighborhood Marathi Church, and we're happy to have also the Marathi Church members over here. So it is time for Pastor Ashok Kamble to speak over God. He'll be speaking in Hindi, so I hope it will be fine. इसको मराठी आता है, हाथ ऊपर दो। मराठी समझता है सबको? सबको नहीं समझता। सबको नहीं समझता आता। तो कोई वर्ड्स हिंदी में बताएंगे, कोई वर्ड्स इंग्लिश में बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, कौन आज बहुत आनंदित है? जो बहुत आनंदित है वो दो हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। एक गांव था और उस गांव में 1ली से 10वीं तक स्कूल था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने बताया कि तुम्हारा कल 10वीं की एग्जाम है और सब जन ने रात को 12 बजे तक स्टडी करना चाहिए। तो सबने बोला कब कैसे लिखेंगे, एक हफ्ता कम से कम दो। तो प्रिंसिपल ने कंसिडर किया कि ठीक है, एक हफ्ते के बाद तुम आओ, तुम्हारा सबका एग्जाम लेगा, लेकिन तुम लोग ने 12 बजे तक स्टडी करना बात। तो 10वीं की जो क्लास का उसको सबको पूछा कौन आप स्टडी करेंगे, तो सब जन का हाथ ऊपर। और कितना बजे तक रात को स्टडी करने का है? 12 बजे। ऐसा देखते देखते हफ्ता गया, वो दिन आ गया, सब जन स्कूल में आए। तो प्रिंसिपल ने बोला अभी कल एग्जाम है, तो किसी ने 12 बजे तक रात को अभ्यास किया, स्टडी किया, हाथ ऊपर करो। तो कितने जन ने हाथ ऊपर किया होगा? जस्ट गेस करके कितना जन ने हाथ ऊपर किया? कम से कम 60 विद्यार्थी थे, 60 स्टूडेंट्स थे। सिर्फ एक जन ने किया। तो प्रिंसिपल ने बताया दीपक तुम ऊपर बेंच के ऊपर खड़ा रहो। He told to stand on bench and then he told everybody to clap for him. So everybody clapped. then सर ने बोला दूसरे स्टूडेंट को तुमने कितना बजे तक अभ्यास किया? तो बोला मैं रात को 11 बजे तक किया। दूसरे को पूछा तुमने कितना बजे तक किया? तो बोला 10 बजे तक किया। तीसरे को पूछा तुमने कितने बजे तक किया? 9 बजे तक किया। सब जन ने 9, 10, 11 तक स्टडी किया। लेकिन सर ने बोला देखो इस कम से कम 3-4 घंटा अभ्यास किया सब जन। तो सर ने बोला देखो दीपक ने मेरा आज्ञा का पालन किया। तो दीपक ये सब जन ने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन इन्होंने 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा स्टडी किया। एवरीबडी स्टडीड अप टू 4 hours. So let me ask you, तुमने कितना बजे तक स्टडी किया? तो 12 बजे। तो स्टार्ट कब किया? तो बोला 12 को 15 मिनट रहते थे। 12 मिनट 15 minutes है। So like that, I am going to take only 15 minutes off, not more than that. तो आज का मेरा विषय है, today's my subject is why to serve God. Why to serve God? उसका बेनिफिट कुछ है क्या? परमेश्वर का सेवा जो हम करते हैं तो उसमें बेनिफिट कुछ फायदा है क्या? कुछ है फायदा? सच्ची बोलो, है फायदा। अब बहुत जन ने साक्ष्य मनी दिया, टेस्टिमनीज दिया, उसमें उन्होंने बताया सिस्टर ने बहुत अच्छा लेसन स्टडी दिया। जैसे जब लेसन स्टडी था तभी हम आए तो लेसन स्टडी लेना एक भी सेवा है। मॉर्निंग साक्षी देना एक भी सेवा है। प्रीचिंग करना एक भी सेवा है। चर्च को आना एक भी सेवा है। एक दूसरे को मदद करना एक भी सेवा है। एक दूसरे से झगड़ा करना
करना सेवा है क्या? है क्या सेवा? नहीं सेवा, तो वो नहीं करता। तो आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर की सेवा करेंगे। If we serve the God, what is the benefit? जो स्क्रिप्चर रीडिंग की मास्टर ने सुना है, रीड किया है, अहो पृथ्वीवरील सर्व लोक परमेश्वराचा जय जयकार करा, हर्षाने परमेश्वराची सेवा करा, गीत गात त्याच पुढे या, कारण परमेश्वर कसा आहे? कसा है? चांगला है। क्योंकि सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को बुलाया क्या? सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन बोलने के लिए, सबको बुलाया। अब क्यों बुलाया? कि उनको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, इसलिए हम सेवा करना चाहिए। अब मेरे परमेश्वर के लोग को सेवा अभी बहुत कम रह गई। ईसा मसीह कभी आने वाला मालूम नहीं। When he is going to come, suddenly he is going to come. So are you ready? हम तैयार हैं क्या? हम बोलते हैं नहीं मैं 60 साल जीऊंगा, मैं 70 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा। नहीं मेरे प्रिय, हमारा जीवन बहुत कम है। इसलिए हिंदी में गाना है, वो गाना मैं तुमको सुनाता हूँ। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हे जीवन में फूलों की माला, हे जीवन में फूलों की माला, तो हम लोग ने कितना सेवा करना चाहिए, हम लोग ने कितना सेवा करना चाहिए। अगर हम नहीं सेवा करेंगे तो ऊपर हमको मेवा नहीं मिलेगा। ऊपर का मेवा कैसा मालूम है? ऊपर का मेवा ऐसा है कि सब जो रास्ता है वो सोने का। हम कभी नाराज होते कि हमारे पास सोना नहीं। लेडीज लोग बहुत नाराज होते हैं, उनको गंडल नहीं है, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र नहीं है, अंगूठी नहीं है, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ऊपर किसके ऊपर चढ़ने वाले हैं? तब भी हम सोचते हैं कि हमारा दीवार अच्छा नहीं है, कच्चा दीवार है, लेकिन ऊपर दीवार कैसा है? शादी की। हम कभी कभी सिर्फ केला खाते हैं, क्योंकि केला सबसे सस्ता है, लेकिन ऊपर ऐसा परमेश्वर ने झाड़ बनाया, ये झाड़ को 12 प्रकार के फल लगते। कितना प्रकार के फल लगते जो हमने देखा भी नहीं, लेकिन ऊपर हमको खाने को मिलता। और ऊपर कपड़े धोने की जरूरत
ऊपर एक नहीं, मरण नहीं, ऊपर दुख नहीं, सब सुख है। तो इसलिए सेवा करो तो ऊपर जाने को मिलेगा। अगर सेवा नहीं करेंगे तो नर्क में जाना। तो आप सुनो, आज का मेरा विषय है कि अगर सेवा करेंगे तो हमारा क्या फायदा, हमारा क्या फायदा। ये सुनने से पहले दो शब्द की प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, ये 6 दिन हमें संभाला और ये शब्द के दिन हमें एकत्र किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। जो हम आज संदेश सुनने वाले, क्या हम सेवा करेंगे तो क्या लाभ है, अगर नहीं करेंगे तो कौन सा लाभ। ये हम आज संदेश सुनने वाले हैं तो समझने के लिए बुद्धिमत्ता दे, ज्ञान दे, ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसके पास बाइबल है उसमें निर्गम एक्सोडस चैप्टर 23, एक्सोडस चैप्टर 23 और 25 से हम उसमें वचन देखेंगे और सेवा करने से क्या फायदा है ये हम इसमें से सुनेंगे। तो 25 से 26 तक कैबिनेट में पढ़ो, कोई देखो। If you worship me, the Lord your God, I will bless you with food and water and take away all your illness. In your land, no one will have miscarriage or be without child. I will give you the long life. Live. कैबिनेट पढ़ो, नो कैबिनेट, ओके। तो परमेश्वर का सेवा करेंगे, if you serve the God, there is very good blessing. First blessing, there are 5 blessings in this chapter. इसमें 5 blessings हैं। अगर सेवा करेंगे, गाना गाना ये भी सेवा है, ट्रांसलेशन करना ये भी सेवा है, सब सेवा है। तो अगर ये आप करेंगे, चर्च में आने के लिए भी सेवा है, चर्च को दूसरों को लेके आते हैं वो भी सेवा है। तो अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे सच्चे दिल से तो उसमें 5 आशीर्वाद लिखा है। There are 5 blessings. If you serve the God, you get the 5 blessings. So first blessing is this: तू आपला देव परमेश्वराची सेवा करे म्हणजे तू तुझ्या अन्न पाण्यास बरकत। अगर परमेश्वर का सेवा करेंगे तो तुम्हारे घर में अन्न पानी कम नहीं करेंगे। समझो तुम्हारा घर बहुत सुंदर है लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं, कुछ फायदा ही है। लेकिन झोपड़ी है, उसके घर में बहुत खाने के लिए, तो आनंदी कौन रहेगा? Who will be happy? बिल्डिंग वाला हैप्पी रहेगा या झोपड़पट्टी वाला हैप्पी रहेगा? They will have enough food, they will be happy. इसलिए मेरे बहन और भाई, परमेश्वर की सेवा करेंगे तो तुम्हारे घर में अनाज का कोई कम नहीं, बहुत अनाज तुमको परमेश्वर, तुम्हारे घर में कुछ भी कम नहीं होगा। तो देखो सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है, चर्च आना कितना इम्पोर्टेंट है, चर्च में आके प्रार्थना करना कितना इम्पोर्टेंट है, चर्च में आके बेसर स्टडी लेना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी सेवा है। चर्च में आने के बाद साक्षी देना ये भी सेवा है। चर्च में आने के बाद तबला बजाना ये भी सेवा है। अगर आप ये सेवा करते हैं, आप दूसरे को भी लाते हैं चर्च को, चलो हमारे परमेश्वर का वचन सुनो, तो आपको आशीष मिलेगा। और वो आशीष है कि तुम्हारे घर में कभी भी अनाज का कम पड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के जो सेवा करते हैं उनको बहुत आशीष दिए। दूसरे राजे 4 अध्याय 1-7, 2 किंग चैप्टर 4 1-7। इसमें एक स्टोरी दी है। वो चर्च में एक पास्टर था आलिशा, उसके पास्टर के चर्च में उस सुमेन कर एक लेडी थी, उसका हस्बैंड साफ सफाई करता था लेकिन वो मर गए। वो सेवा करता था, चर्च साफ करना ये भी सेवा है। मैं जब नासरगढ़ में पढ़ाई करता था
तो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने रोज चर्च साफ किया। और वो चर्च मैं और दूसरा एक वसंत खाजीकर था, दोनों ने रोज चर्च साफ करने का, झाड़ू मार के उसको पूछने का, पोछा मारने का रोज। और वो हमारा जो सुपरवाइजर था वो ऐसा करता था, अगर उसको डर चला वापस करो। तो मैं उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आता, अरे क्या है कि गोडल जैसा चर्च है, इतना ये करने का। लेकिन आगे ग्रेजुएट होने के बाद मेरे को परमेश्वर ने पास्टर बनाया। कम से 5 साल मैंने चर्च का सेवा किया। तो चर्च का सेवा करना, चर्च को साफ करना, कभी कभी आप बोलते अरे ये हल्का काम है, नहीं, ये परंपरा से भी ज्यादा काम। शैमुएल वो भी चर्च साफ करता था, उसमें भी पास्टर था। वो शैमुएल सब चर्च का साफ सफाई करता था, डस्टिंग करता था। परमेश्वर किसके साथ बोला? पास्टर के साथ बोला। वो पास्टर तो प्रीचिंग करता था, किसके साथ बोला? शैमुएल के साथ। तो ये मत समझो जो चर्च साफ करते इधर, ये मत समझो कि बहुत हल्का काम है, बहुत बड़ा काम। तो इस औरत का, लेडी का हस्बैंड वो चर्च में डस्टिंग कर, लेकिन वो मर गया। फिर जब वो बीमार था तो बहुत कर्जा हो गया। तो वो मरने के बाद वो कर्जे वाले घर को आने लगे। तो वो औरत पास्टर के पास गई और बोले, पास्टर मेरा हस्बैंड बहुत सेवा किया चर्च का, अभी क्या करूँ, हमारे ऊपर बहुत खर्च हो गया, अभी क्या करने का? तो पास्टर ने पूछा उसको, तेरे घर में क्या है? तो अपने घर में क्या क्या है अपने को मालूम है ना? तो बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ दिया है। तो बोला पास्टर जी मुझे कुछ भी नहीं है, सब बेच के इसके दवा पानी में लगाया। पास्टर बोला नहीं है तेरे घर में कुछ नहीं। तो बोला वो थिंकिंग करने लगी और बोला ये तो एक ऐसा कॉर्नर में मटके का एक लाइन है और एक मटके में 5 किलो तेल है। एक मटके में कितना किलो तेल है? 5 किलो तेल है, वो है। तो बोला अपने घर पे जाओ, तुम्हारे घर में जितना मटके है वो मटके में जो तेल है उसमें डाल दो और मेरे पास आओ। तो घर में जितना मटका था पॉट्स वो सब भर दिया तेल, लेकिन जो हाथ में मटका था उसमें तेल नहीं है। तो वापस वो पास्टर के पास गई, हमारे घर में का सब मटका भर दिया और जो मेरे हाथ में मटका है उसमें तेल और है, और अभी क्या करूं? तो बोला गली में जाओ, सबके मटके लाओ, सबके मटके लाए, वो भी भर दिया। वापस जो हाथ में मटका था उसमें और भी तेल है, वापस पास्टर के पास गई, अभी क्या करूं? कोई मटका दे रहा नहीं, सब खत्म हो गया, अभी क्या करूं मैं? तो पास्टर ने बताया अभी जो तेल है वो सब बेच डालो और तुम्हारा जो कर्जा है वो कर्जा। ये सब क्यों हो गया? क्यों मदद होगी? क्योंकि उसका हस्बैंड सेवा कर रहा है। जो सेवा परमेश्वर का करता है उसको कुछ भी कम नहीं होगा। इसलिए पहला जो आशीष है, फर्स्ट में से दैट इन योर हाउस, जो अनाज है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये पहला आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद, मी तुझ्यामधून रोग नाही दूर करेन। दूसरा आशीर्वाद, मी तुझ्यामधून रोग करेन। समझो हमारे घर में बिरयानी बनाए और खाने को दी और वो बीमार है, वो खाएगा? अच्छा खाना है तुम्हारे घर, लेकिन बीमार है तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो परमेश्वर बोलता है अगर तुम मेरा सेवा करेगा ना, तुम्हारी बीमारी सब ठीक कर देगा। तुम्हारी बीमारी सब क्या करेगा? ठीक कर देगा। ये दूसरा आशीर्वाद है। कभी कभी हम डरते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हुई नहीं। मिसेस वाकमैन ने टेस्टिमनी दिया कि सब पैर में बस हो गया, क्या करो? पास्टर ने प्रार्थना किया, उनका फैमिली का प्रार्थना, फिर क्या हो गया? बस का क्या हो गया? किधर गया मालूम नहीं, क्योंकि वो हमारे चर्च में बहुत सेवा करते, कुछ भी चाहे चर्च में वो पहला आगे रहते, शब्द सिस्टर आगे रहते। तो ये भी सेवा है।
चर्च में मदद करना, चर्च में आगे आना, ये भी सेवा है। और ये सेवा करेंगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक राजा था, उसका नाम हेजकेल था, वो भी सेवा करता था। किधर भी चर्च बांधने गए तो पैसा देता था। तो चलते चर्च चलवा सर्विस गॉड यूज्ड टू हेल्प देम। तो एक दिन वो बीमार नहीं हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं हम इतना अच्छा काम करते हैं, बैंक ऑफरिंग देते हैं, चर्च को जाते हैं, तो हमको बीमार क्यों नहीं रहते? हमारे ऊपर संकट की बात है। कभी प्रश्न आता है हम इतना अच्छा चर्च में सर्विस देता है, दशमोल देता है, सेवा करता है, फिर भी बीमारी ठीक है। तो आज चर्च में एक डिस्कशन हो गया योग का। योग क्या करता था मालूम? पानी भी पीने का ना तो प्रार्थना करता था। सुबह शाम सब बच्चे लोगों को लेके प्रार्थना करता था, फैमिली प्रेयर। Even though he was praying always, he became sick. किसने उसको बीमार गिराया? उसको सिक किसने बनाया? परमेश्वर ने नहीं। वो शैतान किधर गया था? स्वर्ग में गया था। और स्वर्ग में जब गया तो बाकी के दूत के साथ ये भी खड़ा था। तो परमेश्वर ने उसको पूछा कि शैतान तुम किधर से आया? तो बोलता मैं पृथ्वी में से आया। तो परमेश्वर ने पूछा उसको कि तुमको कोई देखा क्या मेरा प्रार्थना करने वाला? तो बोलते नहीं, पहले मेरा प्रेयर करता है, सब जन आप अपने काम में लगाए। तो बोला देखो नीचे देख, वो देख, घुटने पे के प्रेयर कर रहा। हाँ वो अब उसको क्या करते हैं? शैतान के पास 99 आंसर है और हमारे परमेश्वर के पास कितना आंसर है? 100। तो भारी कौन है? 100 वाला भारी के 99 वाला भारी? 100 वाला। तो परमेश्वर उसने बोला अरे परमेश्वर वो तुम्हारा प्रेम काय को करता मालूम है? उसको सब दिया, उसको सब दे, उसका पूरा नुकसान करो, देखो तुमको गाली देते हैं। तो परमेश्वर ने दे तो बोला उसको तुम्हारे हाथ में लेते हैं इसका उसका प्राण तो दिया, डोंट टेक हिज लाइफ, जब क्या करने का है तो करो। तो शैतान नीचे आ गया। क्या किया पहला? सब जो शिप्स थे सब मार दिया, उसको जो बुल्स था वो मार दिया, जो ऊंट था वो मार दिया। सब लोगों को उसको बोलने के लिए आए योग तुम्हारा शिप खलास हो गया, तुम्हारा ऊंट खलास हो गया, तुम्हारा पेट खलास हो गया। तो वो क्या बोला? वो क्या बोला? परमेश्वर ने दिया। मेरी ग्रैंड ना था, वो हर बरस में 3 बार वो चिकन रहता है उसका पीली निकाले, तो 20-21 ऐसा पीली निकाले। फिर ऐसा भाग छोड़ेंगे तो मांजर लेके जाने बिल्ली, तो बहुत गाली देगा परमेश्वर को काय बघत नाही, माझ्या पिल्लाचं रक्षण करत नाही। तो एक पिल्लं गेलं तर एवढं, एक अगर बच्चा गया तो इतना बोलते। अब योग ने कितना बोलना मांगता है? 5000 मेंढी थे वो सब गया, 500 बैल की जोड़ी थी वो गया, 500 ऊंट थे क्या बस वो गए। उसने कितना गाली देना होगा? नहीं, वो क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर कितना सेवा है। देखो परमेश्वर का आभार मानना ये भी सेवा है। कभी कभी हम आभार मानते नहीं, और आभार मानने के लिए मौका वो है कि साक्षी दे। परमेश्वर का अगर आभार मानने का है, if you want to thank God, you should come forward and give testimony. If you are sitting there not giving testimony, only taking God's help, कैसा लगेगा? अगर आगे आके आभार मानेंगे, if you thank God, God will feel very better. तो क्या हो गया फिर? ये हेजकेल योग का योग के ऊपर बहुत संकट आया, इतना संकट आया कि उसको बच्चे लोग भी मार दिया। ये शैतान वापस ऊपर गया। परमेश्वर ने पूछा अरे शैतान तुम किधर से आया? मैं आया पृथ्वी में से। तो मेरा योग कैसा? योग वो सब तुमने पकड़ दिया था उसको क्या
फिर परमेश्वर बोले जाओ नीचे, तो आए नीचे, तो पेड़ से इधर तक घोड़ आया, और वो घोड़ में इतना उसको तकलीफ होने लगा, उसकी वाइफ आके बोला परमेश्वर का नाम क्यों लेते हैं, मर जाओ, उसको शाप दो और मर जाओ। फिर योग को बहुत बुरा लगा, तो योग ने लास्ट प्रेयर किया, परमेश्वर जो मैं जिस दिन मैंने जन्म लिया वो जो दिन है वो जन्म, ये ऊपर से सीढ़ी आ गया, 2 देवदूत आ गए, उसको बात किया और सब उसका फल मिल गया, जितना उसका नुकसान हो गया था उसको क्या किया परमेश्वर ने, डबल दिया। सेवा, विश्वास। तो यही हिजकिय्याह राजा भी ना बहुत सेवा करा, गरीब लोग को मदद करता था, चल काम करने का पैसा देता था, मदद करता था, लेकिन वो एक दिन बीमार गिर गया, इतना बीमार गिर गया। तो यशायाह संदेश का जो है पास्टर, उसको परमेश्वर ने बोला तुम जाके उसको बोलो राजा को कि तुम अभी आज मरने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? देखो इतना अच्छा राजा, सबको मदद करता था, चर्च को मदद करता था, उसको संदेश किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा कि तुम मरने वाले, तुम्हारा सब इंतजाम करो। तो उसको क्या फील हो गया? उसने तो परमेश्वर को बुरा बोला, कहने मानता है, लेकिन उसने किया क्या? उसने बोला पास्टर को तुम तुम्हारे घर में जाओ, मैं जाऊँ। फिर उसने सब कपड़ा निकाला, राजकारभार का जो कपड़ा था वो निकाला, सादा कपड़ा डाला और प्रेयर किया। क्या प्रेयर किया? परमेश्वर मैंने जो अच्छा काम किया है वो थोड़ा तुम क्या करो, ध्यान करो। मैंने बहुत अच्छा काम किया है, I have done very good work. So please realize that. And if I have done any sin, please forgive me. वो रोके प्रार्थना किया, उसका बना ऊपर तक गया। फिर वापस परमेश्वर ने संदेश को भेजा यशायाह को, तुम जाके राजा को बोलो तुम्हारा बीमारी सब ठीक किया मैंने, और तुम मरने वाले नहीं, तुम्हारा आयुष्य में कितना साल से बढ़ाऊंगा? कितना? 15 साल से। देखो सेवा में कितना मेवा है, सेवा में कितना फायदा है, सेवा में कितना बेनिफिट है। एक गुण का जिंदगी है, एक गुण की अगर हम इसमें सेवा नहीं करेंगे तो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने बताया अगर तुम सेवा करेंगे तुम्हारे घर में अनाज कम नहीं पड़ेगा और तुम्हारी बीमारी में क्या करोगे? ठीक करोगे। दूसरा आशीष है, तीसरा आशीष देखेंगे आपको। 27 वचन पढ़ो, 27। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संभाल दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हाँ, क्या बोला है? कभी कभी हमको डर लगता है, इस हम जगत में रहते कभी दुश्मन का डर होता है। अरे मेरे से वो शक्तिमान है, मेरे से पैसे वाला है, मेरे से अमीर है, तो डरते हैं हम। लेकिन परमेश्वर बोलता है डरो मत, तुम्हारा दुश्मन को मैं ऐसा ही भगाऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम क्या करना मांगते हैं? मेरा सेवा। उसके बदले में तुमको क्या करना मांगता है? सेवा। और चौथा आशीर्वाद है कि तुम्हारे से कोई बाज नहीं रहेगा, मीन्स सबको मैं बचा रहेगा। अभी नए नए शादी जिसके हुए तो उनके माँ बाप हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करो कि मेरे बेटी को, मेरे बेटे को बच्चा दे। तो परमेश्वर बोलता है अगर तुमको बच्चा चाहिए तो तुम मेरा सेवा करो। सेवा करेगा तो मैं तुमको क्या करेगा? गिफ्ट करके बच्चा दूंगा, ऐसा लिखा है। और 5वां आशीर्वाद है तुम्हारा गर्भपात नहीं हो। अगर परमेश्वर की सेवा करेगी, अगर कोई तुम्हारी बहन, तुम्हारी लड़की, बच्ची प्रेगनेंट है तो मैं उसको क्या करेगा? नहीं, नाश नहीं करेगा। तो देखो परमेश्वर ने सेवा करना जो करते हैं उनको ये 5 आशीष दिया है। अगर ये 5 आशीष आपको चाहिए तो ये आशीष आपको कोई सा दुकान में नहीं मिलेगा, कोई फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, तहसील ऑफिस में नहीं मिलेगा, कलेक्टर ऑफिस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये 5 आशीष किस में मिलेगा? एक लास्ट में तुमको स्टोरी बता के मेरा जो सर्मन है वो फिनिश करता है।
एक कुटुंब था और कुटुंब में 2 लड़के और 1 लड़की। परमेश्वर की सेवा वो करती थी। एक दिन वो जो बच्चे लोगों को बाप है वो बीमार गिर गया, तो उसने दोनों बेटों को बुलाया, बेटी को बुलाया, एक एक करके मेरे रूम में आओ, तुम्हारे से बात करने का। तो पहला बेटा गया, देखो बेटा मैं मरने वाला है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए ले और 5 चक्कर जो सीखे तुमको दे, लेकिन परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की प्रार्थना करो, तुमको कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। तो बेटा गया, दूसरा बेटा आया, उसको भी 2 लाख रुपए दिया और 5 एकड़ जमीन दिया और बोला देखो ये ले लो, परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की प्रार्थना करो, तुमको कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। तो बेटी सबसे लाडली रहती है पिताजी की, है। तो बेटी बोला अभी उसको 5 लाख दिया तो मेरे को 10 लाख देगा, उसका 2 लाख दिया तो मेरे को 4 लाख देगा, 5 एकड़ जमीन है मेरे को 10 एकड़ देगा। इसलिए वो आनंदी करके उसके रूम में आए। आने के बाद पिताजी को थोड़ा उसका सिर पीठ दबाया और पिताजी बोला देखो बेटी मैं तो मरने वाला है, लेकिन मैं एक तुमको लास्ट चांस, मैं तुमको एक लास्ट बात बताता हूँ, मैं तुमको एक चीज देने वाला हूँ। अगर कोई भी संकट आया, कोई भी दुख आया, तो ये चीज लेके तुम क्या करो, पढ़ो और प्रार्थना करो। इसलिए उसने सिर में से बड़ा किताब निकाला, पहले के बाइबल इतना बड़े थे, तो उसने उसको दिया और बोला कभी भी संकट आया तो ये बाइबल पढ़ के, काला पुस्तक पढ़ के तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा संकट दूर हो जाए। उसको बहुत गुस्सा है, वो बोला क्या काला पुस्तक दिया, सबको 2 लाख दिया, 5 एकड़ जमीन दिया और मेरे को सिर्फ एक काला किताब। उसको बहुत गुस्सा है, गुस्से से बाहर आ गई। बाद में बाप मर गया, उसका सब फ्यूनरल सर्विस हो गया, फिर ये अपने गांव चली गई। हस्बैंड उसका था, 2 बच्चे था उसको। तो वो जो बाइबल, वो जो काला पुस्तक उसने डायरी में रखा था ना, उसने फेंक दिया एक कोने में फेंक दिया। इसको क्या करने, उनको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, मेरे को नहीं दिया। तो बस बाप को गुस्सा खाते वो आ गए। आने के बाद 1-2 महीने के बाद उसका हस्बैंड बहुत बीमार, और वो बीमार इतनी थी कि सब उसमें घर के जो बर्तन थे सब बेच डाल के उसको दवा किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में वो मर गया। मरने के बाद अभी जिम्मेदारी सब इसके ऊपर आ गई, क्या करने की। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या करते। एक दिन वो ग्राम पंचायत के लोग आते, तुमने 2 साल से टैक्स नहीं भरा, तुम 1 हफ्ते में घर खाली करो। दूसरे लोग आए, हमारे उधारी दे दो। उसको से इतना टेंशन आ गया, वो रोने लगी। जब वो रोती थी तभी उसको याद आ गई। क्या याद आ गई, जब संकट आएगा, अड़चन आएगा, तकलीफ आएगा, तो क्या करो, ये काला किताब खोल के क्या करो, पढ़ो और प्रार्थना करो, तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाए। तो फिर वो बाइबल ढूंढने, वो काला पुस्तक ढूंढने लगी। जब कोपरे में पढ़ा था 1 साल से, उसने वो निकाला, पहला पेज खोला 100 की नोट, दूसरा पेज खोला 100 की नोट, तीसरा पेज खोला 100 की नोट, चौथा पेज खोला 100 की नोट। पूरा बाइबल में 100 की नोट थी। पूरा बाइबल में क्या था, 100 की नोट। वो बोला, वो बोलने लगी, मेरे पिताजी ने मेरे को पैसा भी दिया था और आशीष भी दिया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर देखा नहीं, मैंने उसके ऊपर देखा नहीं, मैंने सिर्फ पैसे के ऊपर देखा, और ये जो आशीष था उसके ऊपर मैंने देखा नहीं। मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हम जगह जो है उसके ऊपर ही ध्यान देते, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तुमको कभी शैतान बोला है कि बाइबल मत पढ़ो, बोला है कि किसको बोला, नहीं बोला। फिर हम बाइबल पढ़ने से दूर कैसे रहते। सबके तुम सुबह उठते और बाइबल पढ़ने को अभी जाके प्रार्थना करो, तो मन में आता है अभी तो खाना बनाओ, ऐसा कैसा बाइबल पढ़ो, तो तुम खाना बनाते, फिर बाइबल के पास जाते, वापस कान में आवाज आते,
अभी तो तुमने खाना बनाया, नाश्ता करो। तो नाश्ता करने के बाद पेट में थोड़ा रहेगा ना तो तुम्हारे ध्यान में रहेगा। अगर पेट में कुछ नहीं तो जो पढ़ते हैं उसको तुम्हारे ध्यान में नहीं रहेगा। तो खाना खा के आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी ऐसा मैंने आदमी ऐसा करो, उनको टाइम हो गया, उनको ड्यूटी को जाने, ड्यूटी करके आके ना तुम्हारा कुछ काम नहीं, तो ड्यूटी को जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, फिर वापस चाय पानी करके तो मन में आता है चलो बातों करके प्रार्थना करो। तब तक और एक आवाज आता है, अभी तो आए थोड़ा बाहर जाके रिलैक्स हो जाओ, दिन भर काम किया है तुमने, अब रात तुम्हारा ही है, रात तुम्हारा ही, तुम बाद में पढ़ जाओ। वो सब घूम के आता है तो औरत बोलती है खाना खाओ। फिर मन में आता है खाना खाने के बाद ना जल्दी नहीं सोएगा, मैं प्रार्थना करूँगा बाइबल। तो खाना खाते, खाना खाने के बाद बेड पे आते हैं, उसको नींद कभी लगती है समझते। तो इसलिए जब भी तुम्हारे मन में आते हैं प्रार्थना करने कभी करो, जब भी तुम्हारे मन में आता है शास्त्र पढ़ने का पढ़ो, डिले मत करो, डिले नहीं करो। इसलिए ये लड़की जब बाइबल पढ़ने को दिया तो सब सौ की नोट, सब उसने इकट्ठी किया, बहुत रोई, बहुत प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, और ये सब पैसा इकट्ठी करके जिसका इसका कर्ज था वो कर्ज दे दिया, और एक किराना माल का दुकान डाला, एक स्टोर डाला उसको, और ऐसा उसका फायदा हो गया क्योंकि उस स्टोर से ज़्यादा प्रार्थना में लक्ष्य देती, जो परमेश्वर की सेवा में लक्ष्य देती, इसलिए उसके बच्चे लोग बड़े हो गए और एक स्टोर डाला। तो अभी उस गांव में, वो गांव का नाम इंगली है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, 2 दुकानें हैं, बाकी के 70-80 दुकान जो है स्टोर से, उसमें से वो होलसेल में माल देते हैं। देखो सेवा करेगा तो परमेश्वर बोलेगा वही तुमको बहुत आशीष देगा। अभी तुम्हारे हाथ में है, तो बोलेगा अरे सेवा करने के लिए बहुत टाइम था, नहीं है, जीवन में 2 दिन है, अगर इसमें हम सेवा करेंगे तो सच्चे हमको आशीष मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हमको स्वर्ग मिलेगा, वो ये मिलने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, यही मेरा काम। For our closing song, let's rise up and sing song number 401.
Jesus, thank you so much that you have given this opportunity to worship you. 6 days you have comforted us on this Sabbath day. We have gathered together to worship you. It was just now we are listening to the sermon. If we don't worship you, if we don't serve, we will not get those 5 blessings. So if you serve him, you will get the 5 blessings and your life will be very happy. Bless all the church members who are come. Those who are sick, those who are in suffering, bless them and guide them in special way. Next week, on Sunday, there is one marriage in this church. Brother Pradeep, Sister Wali, bless this marriage abundantly. Be with both the family members as they are coming up for the marriage. Marriage means lot of expense, so bless both the families to collect those expenses, help them, guide them in this special. Bless all the church members, bless these pastors and their families as he is serving this church. Be with him always, bless him, guide him in his special. Today we have listened a very good sermon, because if you serve, you will get the blessings. Serving means if you is necessary in this church, that is also serving. If mission story, taking it is serving, sweeping the church it is serving, bringing our friends to church, that is also serving. And if you serve by this ways, God says, and give this right blessing, and you will be very happy in this world. So there is no more years or no more days, because your coming will be very soon, so we have to be ready. And if we are ready, God will take you to heaven, and in heaven we are going to stay very happy to enjoy our life with Jesus Christ, God, and His angels. So we have to be ready, and for that your blessing should be up. We have these few messages in Jesus' name we pray. Amen. आणि आता देवचा बाप, देवचा पुत्र आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथे जमलेला प्रत्येक भावावरती, इथे जमलेल्या प्रत्येक बहिणीवरती, प्रत्येक लेकरावरती, जे आजारी आहेत, दुःखात आहेत, संकटात आहेत, त्यांच्यावरती विशेष करून येत्या आठवडी ब्रदर प्रदीप आणि डॉली यांचं लग्न आहे, ते लग्न आशीर्वादित कर. या मंडळीचे बाळासाहेब, फर्स्ट जॉन यांना देखील आशीर्वाद दे आणि त्यांच्या फॅमिलीला तू आशीर्वाद. म्हणून देवचा बाप, देवचा पुत्र आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथे जमलेल्या सर्वांवरती आता आणि सदैव असो.
है।